Hi, good evening, everyone. Another very interesting and relevant topic for today. So, we'll be discussing the restrictions being put by some of the brokers on the SME buying. And I would request you to guys, like, if you feel like you can surely share the link to this spaces for wider reach so that more people can participate and listen to the interesting conversation. And I see Ameya Bhai also. So if he is willing, would appreciate he also join us along with Sandeep Bhai. What happened? Sandeep got dropped. No, Prince, I'm here. Okay, I thought it was showing as a listener. So Sandeep Bhai, I mean, like last time also, although there are English audience as well, but majority of good comments are coming that you guys are doing in Hindi, so people were appreciating. So we'll maintain that English today also. So we can Sandeep, I mean, around the topic would appreciate your thoughts, and as the conversation starts, we'll invite more like-minded people to share their thoughts. Perfect, Prince. So just to probably be good opening, let's without any getting into passionate arguments or pointers. What exactly is happening is, at least for ICCI and apparently for a few other brokers, uh, majority of, and some people are saying 90%. I don't know, frankly. I don't trade, so I don't know, but some people were reaching out to me, the people who are typically not very active in markets, कि संदीप ये आईसीसीआई में प्रॉब्लम आ रहा है, तुमने कभी देखा है क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा है. आई थॉट कि उनका कोई ग्लिच होगा. मैंने कहा कि आप अपने आरएम से पूछ लो. एंड स्पेशली फॉर सम ऑफ द स्टॉक्स विच आई क्लोजली ट्रैक, तो उनको लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा पता होगा. मुझे कैसे पता होगा कि क्यों नहीं आईसीसीआई कर रहा है? देन आई वेंट टू माई वेल्थ गाय आफ्टर 2 days कि बॉस ये चक्कर क्या है. तो बोले नहीं, कई लोगों ने रीच आउट किया है. देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट विच हैज बीन पुट ऑन होल्ड बाय आईसीसीआई कंप्लायंस. एंड ज्यादा तो मैंने ट्रैक नहीं किया है, बट बहुत सारा व्हाट्सएप सोशल मीडिया में चैटर चल रहा था कि अपेरेंटली समथिंग सिमिलर हैज बीन डन बाय फ्यू अदर ब्रोकर्स आल्सो. So essentially, buying has been stopped, apparently for any company which is in ASM framework. Again, this information may be totally wrong also. I haven't got time to check with ICCI or anywhere. In a way, I don't care also, because of late I've gone into for variety of other reasons, including my job commitments and location change, etc. I don't even have time to log in. So mostly मनी कंट्रोल पे देख लिया प्राइस कितना है, थोड़ा बहुत चैटर से समझ में आ जाता है क्या चल रहा है, और दिन में एक बार लॉग इन करके देख लिया. सो दैट्स ऑल आई डू. बट फॉर वास्ट मेजोरिटी हु लव्स टू ट्रेड, this is a obviously little breaker. And if you're holding it, obviously you can sell, right? Funnily, a lot of these hot IPOs, including couple which got closed yesterday, F1, some Ganesan or something, I don't even know the other name, those were available for IPO. So which basically means it's not an comment on an segment, which naturally cannot be. Some people were asking, in fact discussing कि क्या broker ऐसे कर सकते हैं? तो answer is absolutely yes. I mean, there is absolutely nothing illegal about it. A broker can always say, for variety of reasons and primarily around compliance or ability to handle operationally, that we will not allow XYZ securities on our platform. That's broker's prerogative because he has to take care of his system, right? तो उस पर कोई डिबेट नहीं है, right? And you don't need a SEBI circular to do that. Every broker has that prerogative to stop it. इसका जो सबसे फेमस केस हुआ था, जिसपे ये बहुत सारा डिबेट हुआ था, इंटरनेशनल है. इंडिया का रेगुलेशन और यूएस का रेगुलेशन सेम नहीं है, बट ब्रॉडली थॉट प्रोसेस सेम रहती है. तो आज से 2-3 साल पहले जब जीएमई का आप लोगों में से काफी लोग फॉलो करते होंगे, जिसपे नेटफ्लिक्स की काफी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, और अभी फिर हुआ था इस साल एक राउंड, बट पिछले राउंड में जीएमवी जब रोरिंग किटी एंड ऑल दैट, राइट, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल. तो जब शॉर्ट्स बिल्कुल स्क्वीज आउट हो चुके थे, तो उन्होंने रॉबिनहुड में फाइनल डे पे बैन कर दिया. और ऑब्वियसली लाइक एनी कंट्रोवर्सी, देयर इज ऑलवेज टू वर्जन. सो द वर्जन बाय ब्रोकर इज ऑब्वियसली इतनी ज्यादा अग्रेसिव बाइंग हो रही थी कि दे थॉट देयर वाज अ सिस्टमैटिक रिस्क. सो दे बेसिकली स्टॉप्ड ऑन फाइनल डे कि रॉबिनहुड आप बाय नहीं कर सकते हो, ठीक है. और बाय कर करके प्राइस ऊपर करते जा रहे थे, तो शॉर्ट स्क्वीज हो रहे थे.
The counter theory by retailers there was that big guys basically pushed into the system कि 2-3 दिन के लिए बाई रोक दोगे तो स्टॉक प्राइस अपने आप नीचे आ जाएगा and short will be fine. I mean, they can close their position. So that was one specific saga. By no means I'm saying it has any relevance to the topic which we are trying to discuss today, because India में SME में derivatives छोड़िए, even short selling भी नहीं allowed है. At least I am not aware. If someone is aware, if any broker allows, you guys can update me on comment. Basically, purpose of these spaces is also to learn from others. So please feel free to correct any moment if I am saying something which is, let's say, factually incorrect, right? Because my exposure and understanding is limited to the experiences I have. So that's the general background, Prince. तो although you touched upon few points, but इसमें जो genuine buyers होते हैं उनका एक तरीके से मतलब I mean if somebody is thinking of buying any XYZ company at any price point और उनको नहीं मिल रहा है तो उनका तो बेचारों का नुकसान हो रहा है या it's wrong interpretation and नहीं, वी शुड नॉट सी इट, आई मीन वी शुड नॉट मेक इट सो ड्रामेटिक. ये जो हमें फोमो माइंड में रहते हैं ना कि हमने आज नहीं खरीदा तो हमारा नुकसान हो गया, उस तरीके से इसको नहीं सोचता हूँ मैं. एटलीस्ट मैं नहीं सोचता हूँ, एंड एवरीवन कैन थिंक, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि मार्केट उसमें बंद हो गया, उसी समय मैं खरीद लेता. दिस इज ऑल पोस्ट डेटेड फैक्ट. हो सकता है आप जिस सिक्योरिटी को लेने जा रहे थे 3 दिन आपको ना खरीदे और वो इफेक्टिवली आपको नीचे मिले. सो उस आर्गुमेंट में तो नहीं जाऊंगा, नुकसान है वो है. दिस इज मोर अबाउट अ फैसिलिटी, राइट, अ कमेंट ऑन अ सेक्शन. हाँ, स्ट्रक्चरली एक चीज जरूर हो रहा है जो कि नोशनल गेन दे रहा है, और एनीबडी हु डज इट फॉर अ ट्रेडिंग इंटेंट उसको ये स्पेशली ज्यादा बॉदर कर रहा होगा. So as we know that there is a decent segment which buys these companies. I mean, in fact, it is true for large caps also, mid caps also, derivatives also, small caps also. So is true for micro caps also. So किसी भी market में there are all kind of participants. So there is always a segment which tries to buy these stocks for 3 days, 4 days momentum, some news here and there, some speculation, some hard on street kind of arguments, and some structural technical buys also कि यहाँ पे support है वहाँ पे and all that, right? None of that is my forte, so I never understand, though I appreciate their existence. तो उन लोगों के लिए तो बॉदर है. किसी ने सोचा एंड सडनली एक नया चीज स्कीम में आ गया कि देर इज अ बिग प्लेटफॉर्म विच हैज 10% ऑफ लेट्स से मार्केट शेयर, और उनके बायर्स बाई ही नहीं कर पा रहे हैं. तो बाय डेफिनेशन मार्केट इक्विलिब्रियम में चलता है, लिक्विडिटी से चलता है, राइट. ऑल एल्स इक्वल. कंपनी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, किसी में कुछ नहीं चेंज हुआ. 3 दिन पहले जो दोनों साइड से 10 बायर 10 सेलर थे, जहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस आपने उठा के 20% 15% बायर हटा दिए. एंड एक इसमें और टेक्निकल है. मोस्ट ऑफ दीज बिग ब्रोकर्स, द फुल बैंक ब्रोकर्स, typically have bigger profiles, people who have like more cash. General है, मतलब don't want to make it too much of a classification here, but that's a thumb rule. Why? Because they're typically old people. अब मेरा आईसीसीआई का क्यों है, जब मैं कॉलेज से निकला था तब आईसीसीआई खोल दिया था, उसके बाद इनर से आया, कभी चेंज करने की कोई लॉजिक नहीं है. मैं आज की जनरेशन में पैदा हुआ होता तो शायद जीरोधा पे होता, राइट. आई हैव नो रीजन टू चेंज टू जीरोधा. Some brokerage here and there, and I get certain facility. I'm very comfortable with ICCI. तो हमें पता ही नहीं है और कोई ब्रोकर हमने किया नहीं है. तो वो जो सेगमेंट है जो रिलेटिवली ज्यादा कैश लेके बैठता है, डिलीवरी लेता है, होल्ड करता है, उस तरह का सेगमेंट का आपने बायर हटा दिया तो लिक्विडिटी सक आउट होगी, तो नेचुरली एसमी काउंटर्स में आपको प्रेशर आएगा. सो दैट पार्ट असाइड, मैं इसको बहुत नैरो कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए. मैं इस स्पेस में जो भी मैं अपने व्यू रखूंगा उसको मैं स्ट्रक्चरल सेंस में ज्यादा रख रहा हूँ, बजाय इस सेंस में कि आज मैंने नहीं खरीदा तो मेरा लॉस हो गया. वो आर्गुमेंट मुझे मार्केट में ना, मैं मार्केट को हमेशा गुल्लक मानता हूँ और बहुत ही ज्यादा फर्म बिलीव करता हूँ कि चीजें फेयर प्राइस पे होती हैं. तो आपने ट्रेड ली तो बढ़िया है, नहीं भी ली तो कभी भी ये माइंड में नहीं आना चाहिए ये कर लेता तो वो कर लेता. इसका कोई एंड नहीं है उस थॉट प्रोसेस का. संदीप भाई एक चीज और, लाइक आई टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस. सो आई रीच्ड आउट टू द ब्रोकर और मैंने उसको बोला कि यार तुमने कुछ ईमेल पे एज सच नोटिफाई नहीं किया. दैट पर्सन टोल्ड मी कि हमने वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है. तो आर दे अंडर एनी कंपल्शन टू इंटीमेट अस ऑन ईमेल आल्सो, और इट्स लाइक कि totally fine if they do it on the दीज आर website also? सर्विस एग्रीमेंट्स काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस, राइट. इसका कोई लीगल फ्रेमवर्क तो हो नहीं सकता है कि जब भी चेंज होगा तो आप मुझे मेल पे या व्हाट्सएप पे नोटिफाई करोगे. दीज आर द सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड बाय ब्रोकर्स. कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा चेंज करने से पहले एक मेल पे नोटिफिकेशन भेज देते. एक इतनी बड़ी इंडिया का ब्रोकरेज हाउस है और इतना टेक कैपेबिलिटी है, फैंटास्टिक टेक पीपल, कमिटेड पीपल, राइट. हाउ मच ऑफ इट टाइम्स एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है ना, कई बार ये जो कंप्लायंस और सेल्स, इनके जो वेल्थ है
उनके आपस में ही होते नहीं, और कंप्लायंस बाय नेचर कैन नॉट डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे आर सपोज टू डू थिंग्स, क्योंकि वो अगर बिजनेस से डिस्कस करेंगे, आप इसको ऐसे समझिए कि विद इन आईसीसीआई भी, आई एम जस्ट होपिंग, आई एम मेकिंग, आई हैव नो आइडिया कि क्या हुआ है, बट इट इज वेरी कॉमन इन सच सेटअप्स कि कंप्लायंस ने आइसोलेशन में एक्शन ले लिया, जो फील्ड टीम है, आरएम से, उनको पता ही नहीं है, उनको तक को भी नोटिफिकेशन नहीं आया होगा, जब वो क्लाइंट पूछ रहे होंगे कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, देन दे गो अराउंड, ट्राई टू रेज टिकट्स, फिगर आउट कि चल क्या रहा है। तो एब्सोल्युटली यस, आज की डेट में जिसमें आपकी कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन जीरो है, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू जस्ट गेट ऑल मेल आईडी, जस्ट सेंड अ मेल, आफ्टर 5 days वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सच एंड सच। बट वो इंडिया की फितरत में है ना, और कंप्लायंस की भी फितरत में, और हम इंडियन भी बहुत हमारा, हम शौकीन है गवर्नमेंट से लेके पब्लिक से लेके हर आदमी, राइट, कि वी वांट टू, डोंट वांट टू थिंक टू मच ना, कि पहले लगा दो फिर देखेंगे इसका आफ्टर इफेक्ट समझेंगे, सेकंड ऑर्डर इफेक्ट समझेंगे, और उसके बाद हम कोर्स करेक्ट करेंगे, राइट। तो everyone does that. It is probably in our culture to do that. बाहर कंट्रीज में हर लेवल्स पे, इंस्टीट्यूशंस पे, प्राइवेट में, गवर्नमेंट पे, पब्लिक में, हर आदमी 10 बार सोचता है फिर 11वीं चीज करता है। इंडिया वाले पहले करते हैं ना कि करके कर लो फिर देखा जाएगा, जो इसका इफेक्ट होगा उसके बाद करेक्ट कर देंगे। सो वी ऑलवेज टेस्ट थिंग्स ऑन अ लाइव प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ अ थिंग। तो संदीप भाई, इसमें रेगुलेट, आई मीन ऑब्वियसली देयर कुड बी टू साइड्स की रेगुलेटर, एक तो कुछ चीज ब्लैक एंड व्हाइट में देता है, सेकंड कुड बी कि एक सॉफ्ट वार्निंग होती है कि भाई इनडायरेक्टली और या अनऑफिशियली उसको बोला जाए और वो प्रैक्टिस में है, तो ऐसा कुछ आप सेंस कर रहे हैं? आई मीन नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक दे सी दिस फ्रेमवर्क। अब एक्चुअली इसको ना टॉपिक हमें थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा। पहले ये फ्रेमवर्क क्या है, ऐसे मैंने अभी आपसे पहले ही थोड़ा सा, क्योंकि मैंने तो पढ़ा हुआ था बट याद नहीं रहता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स की एल्गो है, तो याद नहीं रहेगी आपको। मैंने भी अभी एक ट्वीट किया है, लेटेस्ट ट्वीट है, मैं इनफैक्ट अभी यहाँ पे पेस्ट ही कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। उसमें ये क्वेश्चन ना, ये जो वर्ड है ना सर्वेलियंस, जब मैंने पहली बार सुना था, एक होता है ना कि आप बाई करने जा रहे हो और सडनली ये आ जाए कि यू व्हाट यू आर बाइंग इज अंडर सर्वेलियंस, तो आपको सडनली एक झटका लगता है ना कि मेरे घर के ऊपर कैमरा लग गया है, कि कंपनी के ऊपर कैमरा लग गया है, कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। सर्वेलेंस इज अ बिग वर्ड, राइट। तो उस समय खुद को भी लगता है कि एम आई डीलिंग इन समथिंग विच इज नॉट प्रॉपर, सो नेम इज वेरी स्केरी फ्रैंकली। Then I know certain companies which got totally worried, newly listed, बोले अरे हमको सर्वेलेंस में डाल दिया, अभी हम किसी से बात नहीं कर सकते, हम एक्सचेंज को कोई नोटिफिकेशन नहीं देंगे। हमने कहा आपको सर्वेलेंस में इसलिए डाला गया है क्या कि आप इन्वेस्टर कम्युनिकेशन करना बंद कर दीजिए, आप एक बार रीच आउट तो करिए। तो जो न्यू प्रमोटर्स होते हैं, न्यू कंपनीज, उनको भी नहीं पता होता है कि इस फ्रेमवर्क का क्या मतलब है, उनको अचानक से डाल दिया जाता है। तो सिस्टम में इतना काम हो रहा है कि प्रैक्टिकली एनएससी या एक्सचेंज के पास भी समय नहीं है कि कंपनी को अवेयर करे, इन्वेस्टर तो छोड़िए। आज गार्गी को एसएम में डाला गया है, पहले भी डाला ही गया होगा, ठीक है। अब गार्गी जैसी फ्लॉलेस कंपनी, मतलब एनीबडी हैज एनी सेंस ऑफ बीइंग इन महाराष्ट्र, उनको इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि दिस कंपनी ऑफ ऑल द कंपनीज कैन नॉट हैव ए प्रॉब्लम। तो वो बहुत ही मैकेनिकल है। सो नो क्वेश्चन आस्क्ड काइंड ऑफ ए फ्रेमवर्क मैंने भी यहाँ पेस्ट किया है, वो मैथमेटिकल है, ठीक है। तो उससे एसएम फ्रेमवर्क में आता है। फिर उसमें क्वेश्चन उठता है कि ये फ्रेमवर्क क्या करने की कोशिश कर रहा है। It is basically saying, based on certain mathematical parameters, we sense a potential risk. Does not mean anybody who is buying and selling such companies is a problem, and obviously company is not a problem. तो इन्होंने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई किया, क्योंकि हम लोगों ने काफी शुरुआत में सवाल पूछा था कि डू यू सेंस एनी, क्योंकि if regulators know more than us, then obviously they should tell us, right? Why even put someone in ASM? Simply tell investors कि यार इस कंपनी में ये प्रॉब्लम है, आप प्लेटफॉर्म पे सस्पेंड कर दो ट्रेडिंग, अगर आपको इतना प्रॉब्लम लग रहा है। तो दैट्स नॉट द इंटेंट ऑफ दिस फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बड़ा सिंपल है। बहुत नॉन डिलीवरी ट्रेड होगी, अगर उसको डिमिस्टिफाई कर दूं, आप मैथमेटिक्स यहाँ पे मुझसे ज्यादा स्मार्ट लोग होंगे, वो पढ़ के और एल्गो समझ सकते हैं उसका। बट उसका जो ब्रॉड बेस्ड एसेंस ये है, शार्प मूव्स स्पेशली ऑन द अपसाइड, और नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग्स, बेसिकली दिन के 2 लाख ट्रेड्स, 4 लाख ट्रेड्स और 20% डिलीवरी, बेसिकली मीन्स इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें obviously intraday trading in itself is not a problem, but sometimes these intraday tradings are done to create a price patterns by bad characters, operators in simpler words. And third is कि कुछ limited number of pans बार बार ऊपर नीचे and all that, right? So this as a function of volume is a function of market cap. Summary यही है, price movement, non delivery and concentration, राइट। इसके कॉम्बिनेशन पे उन्होंने एसएम 1, 2, 3, 4 बनाया।
एक और फ्रेमवर्क है जीएसएम, विच आई एम टोल्ड अगेन, रिकॉर्डेड सेशन है, आई शुड नॉट बी फ्रिवलेस इन मेकिंग स्टेटमेंट्स, बट आई हैव ए फीलिंग, आई एम टोल्ड, I don't have time to verify my statement, so that's why I'm putting caveats. That framework, when company goes into GSM, it is considered to be little touching on concerns on the company, on the setup script, etc. ASM is a very mechanical kind of a setup. So personally, I'm very surprised that ICCI is doing something like this. In fact, मेरा first reaction 2 दिन पहले यही था कि अरे नहीं यार वो चेंज कर देंगे, एसएम कैसे बन, एसएम में तो अच्छी अच्छी कंपनियां, इनफैक्ट आई रिकॉल मिनी टाटा ग्रुप कंपनीज, आई डोंट, आई मीन आई डोंट ट्रैक नाउ डेज, आई एम नॉट दैट एक्टिव इन मार्केट्स, बट आप, हाँ टाटा एलेक्सी था इनफैक्ट, इफ आई रिमेम्बर 2 साल पहले जब मैं एक बार लिस्ट देख रहा था एनएससी की साइट में, तो मैंने बोला कि टाटा ग्रुप कंपनी को डाल सकते हैं एसएम में, तो फिर सोचने की क्या जरूरत है. तो दैट्स इन नटसेल व्हाट इट इज. इट्स नॉट अगेंस्ट कंपनी, and that's what my tweet says, कि even if ASM framework में they identify something problem, as long as you're confident कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका खुद के इंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, how does it even matter? प्रॉब्लम इज कि ब्रोकर ने एक बोल्ड कॉल ले ली है, विच आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट दैट इट विल गेट रिवाइज्ड. पर्पज अगेन दिस स्पेस का ये नहीं होना चाहिए कि क्या होगा क्या होगा, एंग्जाइटी क्यों लेना है, 2 दिन 3 दिन होगा, बंद कर देंगे, कुछ और कर लेना, आप लोग एफडी कर लेना, गोल्ड कर लेना, म्यूचुअल फंड कर लेना. सो we'll see what will happen, but this is in a way little unfortunate also, Prince. So maybe if you have any question, otherwise I'll probably expand it to a couple of anecdotes which I often think about dealing into this space. Yeah, you can expand. And it's like if we take a comparison, तो basically घर पे पुलिस आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि चोरी है, वो पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के लिए नहीं, भी बट आ आपके सकती घर है, में भी राइट? नहीं आ रही है ना प्रिंस, घर में आ रही है तो तब भी ठीक है, आपके मोहल्ले में आ रही है. Okay. Now you can go ahead with expanding as नहीं, you were saying. मैं Yeah. इनफैक्ट मुझे लगता है ना कि हम एज ए कंट्री हम मेंटली तैयार नहीं है इस सेगमेंट को हैंडल करने के लिए. हमने फ्रेमवर्क तो बना दिया है 10 years के लिए, ना तो एज ए रेगुलेटर हम तैयार हैं, ना हम एज ए सोसाइटी तैयार है. इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आज तक मुझे उतना मतलब रेगुलेटरी कंसर्न्स तो कभी नहीं हुआ. माय पेरेंट्स often are very worried, my well wishers are very worried कि संदीप ये टू गुड टू बी ट्रू, इतना पैसे कैसे बनता है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा, कुछ तो गड़बड़ होगा, राइट? द पीपल हु रियली आर वरीड अबाउट यू. सो वी आर नॉट ट्यून्ड. क्यों? क्योंकि एक ह्यूज सेगमेंट है जो कैपिटल मार्केट्स को हमेशा गैम्बल समझा है, फॉर राइट एंड रॉन्ग रीजंस. 90s में इतने बड़े स्कैम्स हुए, 2 राउंड हुए, तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है, सिस्टम से ट्रस्ट खत्म हो जाता है, एंड दे हैव रीजंस, राइट? फाइनेंशियल लिटरेसी इन जनरल इंडिया में कम है, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड हर जगह कम है, वी आर स्टिल मच स्मार्टर, बट दैट एज ए कॉन्सेप्ट ओनली 5% 10% मैक्स से मैक्स लोग ये कह सकते हैं उनको बेसिक लेवल की फाइनेंशियल लिटरेसी है. अप्रिसिएशन ऑफ व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड, इट चार्जेस 40%, इंश्योरेंस क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम यूलिप, जो एक बेसिक होता है ना कि जो आप किसी बंदे को 20 आवर्स में समझा सकते हो. मुझे नहीं लगता कि 5% से ज्यादा इंडिया में उसको वो कह सकता है कि मुझे बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी है. और दूसरा, ये जो हम इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं ना कि सब कोई बैठ के एसएमई की इन्वेस्टिंग कर रहा है, तो प्रिंस एक थोड़ा सा सैंपल साइज ले लो. मुझे नहीं लगता है कि 2 लाख 3 लाख पैन से ज्यादा एक्टिव है एसएमई मार्केट में. ठीक है, मार्केट बहुत छोटा है. दूसरा क्या है कि हम ये छोटा सा हमने इकोसिस्टम बना लिया. ट्विटर स्पेस में वही बार बार वही सेम लोग आएंगे, उनमें से काफी लोग व्हाट्सएप में भी कनेक्टेड हैं. ठीक है, हम कुछ भी नहीं है, 140 करोड़ के सैंपल में वी आर नथिंग. हम ये आज ये स्पेस कर रहे हैं, हमको लग रहा होगा कि हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं. 100 to 100 इज इंडिया में एक प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं लोग, राइट? तो प्लेटफॉर्म एज इन फिजिकल प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं. सो वी आर नथिंग, राइट, एज ए सैंपल. बट क्या हो रहा है कि करना चाहता है, और पैटर्न प्रोसेस में कॉन्डिसेंडिंग भी है, probably intentional. Sometimes there is a segment which says probably most likely unintentional, but there is a segment which says it is intentional also. So we'll talk about the second part, but first part, unintentional part. तो मुझे एक स्टोरी याद है, आज से 6-7 साल पहले, इनफैक्ट सॉरी ड्यूरिंग कोविड, my long time maid, we don't even, I mean maid is a wrong word, helper, whatever word you want to use, I mean kind of family for us. 10 साल से हमारे साथ थे, and she was always taking leaves, and I was annoyed कि ये क्या है, मतलब आप इतने देर से आ रहे हो. तो बोले आज बैंक जा रहे हैं, आज कोऑपरेटिव बैंक जा रहे हैं. बेसिकली वाज ट्राइंग टू बाय ए होम जिसके लिए उसको लोन चाहिए था.
तो उसने पहले बैंक से ट्राई किया, फिर मैंने जितनी वो स्कीम पढ़ी थी कि हाँ चले जाओ जैम अकाउंट कर लो, वी वर गाइडिंग एंड शी वाज स्ट्रगलिंग फॉर 3 months. And then my daughter could figure out कि auntie is trying this and it's not working. ठीक है. At the same time during COVID, we used to get so many calls, right? HDFC की call आएगी, Bajaj Finance की, and every day you'll get like 10 calls, 9 calls you'll say politely yes, yes, okay, no ma'am, we don't need it. 10th में कभी तो आप थोड़ा सा irritate हो जाओगे. So my daughter can see that also कि my father is constantly getting call for loans which he doesn't want. And this auntie which comes to our house basically wants a simple loan, 4-5 loan, collateralized loan, home loan. Nothing can be more pious purpose of money than to own a home, right, as a system. But she can't get it. तो she was saying कि पापा आप इससे क्यों नहीं बात करा देते हो जो आपको लोन के लिए कॉल करता है. As a kid she asked this question, probably 7-8 year old. And I said, she doesn't need it. I don't need it, and that's why they want to give it to me. And she needs it, and that's why no one will give it to her. So that's the irony of financial system, that capital is available to people who don't need it, but capital is not available to people who need it, right? So what is the purpose of SME market? Is it for trading? Absolutely not. We're just parasite as a traders trying to benefit from it, and we think it is a purpose. See, trading doesn't add anything to the society. I mean, you can say liquidity and this and that. That's not a purpose, right? Purpose of capital market existence is to support businesses, right? And to at a country level, at a policy level, right? And for that to happen, every entrepreneur should have access to capital, just not big entrepreneurs, generational entrepreneurs, Tatas and builders, and not only those tier one entrepreneurs. IIT, and I'm no, by no standard, I'm Mark U academic background, but I'm no mean guy either. Also by those standards, right? तो मैं इसको थोड़ा impartial sense में बोल रहा हूँ कि आप एक IITIM का बंदा है, एक बेसिक सा ऐप है, आइडिया है, उसको एंजल राउंड फंडिंग 5 million की, 10 million की मिल रही है. आप बाइजू का एक छोटा सा सैंपल टेस्ट करिए. जस्ट इमेजिन बाइजू वाज लिस्टेड इन इंडियन मार्केट्स. कितना एसएम, कितना जीएसएम पड़ा होता उस पे. आपकी आंखों के सामने वो 100 million, 200 million कुछ करते हुए 10 billion. आई डोंट इवन नो कि व्हाट वाज द पीक वैल्यूएशन. Surely some crazy numbers like $15-20 billion. From there it is literally ground to nothing now. Can't pay regulatory dues, can't pay employees, right? I don't even know what is the latest status. It's just a lot of litigation. लेकिन वो अनलिस्टेड में है, तो नो वन वांट्स टू प्रोटेक्ट यू, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या है कि इंस्टीट्यूशनल मनी है, वीसीपीई मनी है, नन ऑफ रेगुलेटर्स जॉब, राइट? बट आपने एक छोटे बिजनेस को आप लिस्ट करा रहे हो जो कि प्रॉफिटेबल है. आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि एसएमई की लिस्टिंग में प्रॉफिटेबिलिटी इज ए मेजर क्राइटेरिया. आप इसमें अनप्रॉफिटेबल बिजनेस लिस्ट ही नहीं हो पाएगा, मतलब उसके लिए बहुत लेवल का एक्सेप्शन चाहिए होता है. तो बाय डेफिनेशन इंडिया में सो कॉल्ड जो मैक्रो कैप सेगमेंट है, उसमें वही कंपनियां आ रही हैं जिनकी नॉट ओनली यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स इज सॉर्टेड, बट इवन ए कंपनी लेवल इकोनॉमिक्स इज सॉर्टेड. ना उसके पास डेट है, ना उसके पास इक्विटी है. और ये हर बार मैं प्रिंस बोलता हूँ. इनफैक्ट कोई भी मेरी थ्रेड में जाएगा तो दे कैन सेंस दैट पैटर्न. येस्टरडे मैं अचानक से ये बैठ के लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं लोगों के डाल रहा था. समवन वाज आर्ग्यूइंग विथ मी. उसके माइंड में क्या था कि एसएमई का मतलब होता है कि कोई छोटा सा ऐसे प्रमोटर पढ़ा लिखा नहीं होगा, कुछ कर रहा होगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा या कोई नमकीन बेच रहा होगा. ठीक है, दोज आर बिजनेसेस एंड दे आल्सो हैव राइट टू एग्जिस्ट. बट दिस ब्लाइंड assumption दैट इन एसएमई मार्केट देयर एब्सोल्युटली नो प्रमोटर हु हैव दिस सो कॉल्ड पेडिग्री. तो मैंने अपने ट्वीट पे ऐसे ही उठा करके, मैं ट्रेन में बैठा था तो मैंने लिस्ट करना चालू किया. Probably could list 5, 6, 7 names I know. और भी होंगे, ठीक है. So I was just trying to tell someone, and then after that I sent that thread to that gentleman कि बॉस थोड़ा सा आंखें खोलो, ऐसे आंख मूंद करके मत बैठो, ठीक है. So that was this thing. तो मुझे लगता है कि हमने लिस्ट तो करा दिया इन कंपनीज को, बट हम मेंटली, ये मेंटल लिमिटेशन है हमारी. वीसीपी में आप सब लोग न्यूज फॉलो करते हो, इसमें से काफी लोग न्यूज फॉलो करते होगे. आप सुनते हो ना कि इस कंपनी ने फंड रेज किया 50 million के राउंड में. 4 महीने के बाद न्यूज आती है 200 million के राउंड में. 4 महीने में ऐसा क्या हो गया उस कंपनी में? क्या वो मूर्ख लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है? नहीं, वो रिच लोग हैं, वीसी हैं, पी हैं, उनको पता होगा. हमें नहीं पता है. हमें नहीं पता है तो हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है. ये एजम्पशन है, और इस एजम्पशन के पीछे वैलिड रीजंस भी हैं. मार्केट में मैनिपुलेशंस के बैड साइड के कैरेक्टर्स भी आपको पता है कि वो क्या करते हैं.
और बेसिक क्राउड भी पता है. आई गेट लाइक 5 मैसेजेस एवरी वीक, सर अगली बार जब आप खरीदिएगा तो बता देंगे. मैंने कहा फिर मेरे को पैसे ही दे दो, मैं मैनेज कर देता हूँ तुम्हारा. मतलब no one wants to listen about a company, no one wants to understand why I bought, and I'm sure it happens with thousands of people. So it is not, I'm not talking about me, I'm only talking about my personal experience. People are only interested एक्स बंदे ने कब खरीद लिया, वो बेचते समय आपको बताएगा क्या? नहीं. तो उस तरह की क्राउड भी है और उस तरीके के ऑपरेटर्स भी हैं. उस छोटे सैंपल सेट की वजह से अगर कोई जेन्युइन इन्वेस्टर है और जेन्युइन यंगस्टर्स हैं जो कि सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एंड जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस फंड के बेसिस पे ग्रोथ कर रहे हैं, जो हमने प्रिंस टॉपिक अभी पिक किया था प्रेफ वाला, उसमें एक्चुअली उतना अच्छा डिस्कशन हो नहीं पाया. एज आफ्टर थॉट मैं सोच रहा था कि हमने उसकी तो बात ही नहीं की कि कैसे वो प्रेफ ग्रोथ कैपिटल होता है. मैं आपको मतलब प्रिंस उसमें एक आर्गुमेंट था, थोड़ा नुआंस है. यहाँ पे अमेय हैं और भी बाकी लोग होंगे, निखिल भाई हैं, इनफैक्ट विनीत इज हियर. आई एम प्रोबब्ली मेकिंग दिस आर्गुमेंट टू देम कि अगर मुझसे जानते, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एंड लेट मी एड्रेस टू देम कि अरे ये प्रेफ अगर लेट से एक्स प्राइस पे आने वाला है तो हम आज से क्यों नहीं खरीद लेते हैं. एंड इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. सो फॉर आर्गुमेंट से एक स्टॉक 500 रुपए का चल रहा है एंड मार्केट इज एंटिसिपेटिंग कि 800 रुपए में एक प्रेफ आएगा 6 महीने बाद, राइट? यू ऑफन हियर दिस चैटर. तो आपको लगेगा कि यार जब वो प्रेफ आएगा तो पूरी दुनिया क्यों इतनी मरी रहती है, आज ही खरीद के रख लो, राइट? बहुत ही सिंपल सा आर्गुमेंट है. मैथमेटिकली मैथमेटिक्स भी नहीं चाहिए, तो बेसिक कॉमन सेंस है. बट वो 4 महीने इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. इफ सम कंडीशंस आर मेट on execution, on potential order book, etc., then company will need that kind of a capital, and then investors will be ready to give that kind of a capital. It is a very simple stage backed kind of a funding. वीसी में निखिल भाई आप आ जाओ स्पीकर पे. ये तो बिल्कुल कॉमन है ना कि माइलस्टोन बेस्ड फंडिंग को डिसाइड करो, डे वन पे डिसाइड कर देते हैं कि आपको 100 मिलियन पे हम फंड डाल रहे हैं, इतनी इतनी सेल्स होगी तो हम 200 में और इतना डालेंगे, अगर इतना सेल्स होगा तो हम 500 में इतना करेंगे. तो इज इट सम काइंड ऑफ ए मैनिपुलेशन और इज इट सम काइंड ऑफ ए स्कीम? ऑब्वियसली नॉट, राइट? दैट्स द ब्यूटी ऑफ अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग. बट जब हम उसको लिस्टेड एनवायरमेंट में देख रहे हैं तो हमको वो सरप्राइजिंग लग रहा है, क्योंकि हमको आदत नहीं है वैसा प्राइस मूवमेंट देखने का. छोटे स्टॉक्स हैं, 20 लोग मिलके ग्रुप में तारीफ करने लगेंगे तो स्टॉक ऑब्वियसली 10% ऊपर चला जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद वो नीचे आ जाएगा. तो दोज पैटर्न्स असाइड, हर चीज में सिनिस्टर मोटिव ढूंढना एज ए रेगुलेटर, एज ए सिस्टम और एज एन इंडिविजुअल इज प्रॉब्ली not being fair to this mini segment. So I'll take a pause here, Prince. Otherwise, one-sided. Maybe if someone else wants to come as a speaker. Yeah, Nikhil has joined us and also sent request to Ameya and Vineet in case Ameya also wants to join. Yeah, Nikhil, your thoughts would be welcome on this. Thanks, Prince. I think I totally agree with Sandeep Bhai on this. That in fact, ये question मैंने खुद भी संदीप से पूछा हुआ है कि संदीप प्रेफ ले रहे हैं, पर अगर मार्केट में किसी को मिल रहा होगा तो चाहे थोड़ा भी एक्स्ट्रा पे मिल रहा है तो वो उससे क्यों नहीं उठा लेगा. तो इनफैक्ट he had explained it with a nice analogy because I am from the startup world, VCP world. So he had said कि जब स्टार्टअप्स की सीरीज A, B, C होती है, D होती है, तो हर बार एक अलग ढंग से लिया जाता है ना. तो आप इसको सीरीज C की तरह समझो. तो अब हो क्या रहा है, क्योंकि एसएमई मार्केट हम देख रहे हैं तो सबके परसेप्शंस अलग हैं इसके. सबको लगता है कि इसको अलग ढंग से देखना चाहिए, जबकि आई थिंक कुछ प्रिंसिपल शायद थोड़े से डिफरेंट है, पर लार्जली काम तो वही हो रहा है. प्लस इसमें एक जो चीज मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, कि चाहे वो कोई भी मोड है, और उस दिन कॉल में वो भी समझाया था संदीप ने बड़े अच्छे से, अलग अलग तरीके हैं. राइट्स इशू हो सकता है, प्रेफरेंस हो सकता है, क्यूआईपी हो सकता है. ये हो क्यों रहा है? ये बेसिकली हो रहा है कि कंपनी को कैपिटल मार्केट्स सपोर्ट कर रहे हैं पैसा उठाने के लिए, जिससे कि वो ग्रोथ कर पाए. और सेम चीज एक स्टार्टअप में भी होती है कि एक वीसीपी उनको पैसा दे रहा है ग्रोथ करने के लिए, कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए. तो आई थिंक वो सिमिलैरिटीज और वो जब हम समझने लगते हैं तो प्रोबेबली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. सो या, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. संदीप, डज इट मेक सेंस? एग्जैक्टली. तो मतलब जब तक हम उसको
हम सिनिस्टर मोटिव समझेंगे कि लोगों को पहले से पता था। उसमें और भी आर्गुमेंट थे, मैं प्रेफ वाले आर्गुमेंट्स नहीं रिपीट करता हूँ, और लेट्स नॉट फोकस ऑन प्रेफ, मे बी हम अदर साइड पे भी जा सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मार्केट्स में बार बार चीजें होती हैं, ड्रॉडाउन्स होता है, वोलेटिलिटी होता है। मैंने एक और थॉट एक्सपेरिमेंट है निखिल, मुझे पता नहीं है कि मैं मतलब ये थॉट एक्सपेरिमेंट तो मैं उसको इंग्लिश में बोल रहा हूँ बट हिंदी में क्या होता है कि कोई आपसे बहस कर रहा होता है और आप उसको काउंटर करने के लिए कोई एक आर्गुमेंट पेश करते हो, राइट? जो भी आप उसको बोलिए, तर्क बोलिए। तो मुझसे कोई रियल एस्टेट के लिए ही इनफैक्ट हमेशा बोलते हैं ना कि अरे ले लो, आराम से बैठा रहता है, 20 साल बाद उठा के बेच दो यार, शांति है। मैंने कहा आपको किसने मना किया है? आप एक बार स्टॉक खरीद लो बहुत सारा, निफ्टी फिफ्टी, उसके बाद पासवर्ड चेंज करा दो वाइफ से और भूल जाओ, 20 साल के बाद रिडीम कर लेना। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड होते हैं, ऑटो रिडीम में वाले होते हैं। आपको कोई कंपल्सन तो नहीं है ना कि आप सुबह उठ के उसको 9 बजे देखो ही। अगर आपको उससे एंग्जाइटी आती है तो आप क्यों देख रहे हो? तो बोले नहीं नहीं, वो डेली ऊपर बढ़ता गिरता है, मुझे अपने पैसे का इस तरह से देखना नहीं है। मैंने कहा चलिए, आपका ये प्लॉट है 300 स्क्वायर यार्ड का, इसको हम लोग 1 लाख यूनिट्स में बांट देते हैं, ठीक है? और उसमें से कुछ इंक्रीमेंटल ट्रेडिंग करा देंगे डेली, कि पूरा प्लॉट तो नहीं बेचना है बट एक कोई हिस्सा बिक सकता है 1 स्क्वायर इंच का, फॉर आर्गुमेंट ओनली। डोंट गो इनटू द मैथ्स, जस्ट अंडरस्टैंड द स्टोरी। सो 1 स्क्वायर इंच का प्लॉट बिक सकता है। अब सामने घर के किसी ने कूड़ा डाल दिया और उस दिन प्लॉट की कीमत आपके 20% गिर गई, क्योंकि वो जो 1 स्क्वायर इंच किसी बंदे ने उठा करके बेच दिया और पूरे प्लॉट का दिमाग प्राइस 20% गिर गया। आप बोलोगे यार रियल एस्टेट तो बड़ा वोलेटाइल है। व्हाट वी मिस टू अंडरस्टैंड व्हेन वी से कि प्राइस कम है या ज्यादा है, इट इज नॉट कि पूरी की पूरी कंपनी बिक रही है। इंक्रीमेंटल बायर बेसिकली लास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बिकम्स मार्केट कैप। रिलायंस का या छोटे स्टॉक्स की बात करें, एसजी लॉजिस्टिक्स है, बिकॉज दिन पहले 500 था, आज 450 में है। बिजनेस में थोड़ी ना कुछ चेंज हो गया है कि वो 500 या 450 है। तो अगर आपको सोचना भी है तो आप एक महीने की एवरेज प्राइस पे लेके जाके कुछ सोचिए, उसको विवा एप्स पे देखिए या उस पे देखिए। ये सिंगल प्राइस पे देखना और उस पर अपनी नेटवर्थ आंकना और उसके बेसिस पे एंग्जाइटी में आना, तो उनके लिए तो एसेट क्लासेस ये बने ही नहीं है। और हम इसके लिए परेशान है, इतना प्रोटेक्शन चाहिए हमको, कि इतना प्रोटेक्शन की पूछो ना, 5% चाहिए, 10% चाहिए, 2% चाहिए, ऐसा ऐसा फ्रेमवर्क बनाया निखिल भाई कि मैं हैरान रहता हूँ कि हाउ कैन the country whom we are following, right? And we all are extremely proud of our regulatory system, and all said and done, our financial systems are way better than US. Probably not as technologically sound as China is, I'm told. बट क्यों? क्योंकि नए कंट्री हैं, टेक्निकली हमें आता है, शार्प लोग हैं, तो हमारे सिस्टम्स इन जनरल अच्छे हैं। बट स्पेसिफिकली ऑन दिस कंट्रोल थिंग, राइट, कि ये सर्किट्स होते क्यों हैं? प्रोटेक्शन के लिए। बट सर्किट्स के रिवर्स भी है, हर प्रोसेस का रिवर्स भी है। नैस्डैक में फेसबुक 25% गिर सकता है, 40% गिर सकता है, नेटफ्लिक्स 40% गिर सकता है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी 70% गिर सकती है। हमको डर लग जाएगा छोटी कंपनी में अगर हमने 5% से ज्यादा गिरने दिया। करेक्ट। मतलब देयर हैज टू बी सम मैचिंग, राइट? हमसे 6 गुना बड़ा, 10 गुना बड़ा कंट्री है जीडीपी वाइज, इनफैक्ट 7-8 टाइम्स, ठीक है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं हर चीज में। वहां पे उन्होंने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है, हमें लग रहा है कि हमें इतनी प्रोटेक्शन चाहिए। अब एक तो वो मुझे नाम भी नहीं है, वो कौन सा फ्रेमवर्क है, समवन कैन कमेंट। वो वीक में एक बार ट्रेड होता है और सेम प्राइस पे कर दिया है कि जब तक वो सर्टेन कंडीशन नहीं मीट कर रही, प्राइस भी नहीं चेंज होने देंगे। तो उससे बढ़िया थोड़े दिन के लिए बंदी करा दो ना, क्या दिक्कत है? पर संदीप, जैसे आप कह रहे थे ना, ये एक तरह से हमारा कल्चर, हमारी फितरत, कुछ भी कह लीजिए, इंडिया में वो कंट्रोल मैकेनिज्म हम हर चीज पे लगाते हैं। सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं है जहाँ पे लगे हैं। आई थिंक इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ दैट वी डील विद, उन सब में वो लगा होता है। तो कुछ वो भी एक कल्चर है, जबकि अमेरिकन कल्चर थोड़ा ज्यादा ओपन रहा है हर चीज में। तो हर चीज के प्रो एंड कॉन भी है, बट वो आई थिंक कुछ कल्चर का भी ठीक है। चक्कर है इसके अंदर। नहीं नहीं, ठीक है, इट्स ओके। राजेश जी इज इसमें एक इज पॉइंट था ऑन संदीप, स्पीकर। गोइंग बैक टू आवर टॉपिक टुडे। आई वाज थिंकिंग कि चलिए आज प्रॉब्लम आईसीआईसीआई से शुरू हुई है, एंड आई एम अज्यूमिंग आईसीआईसीआई इज द ओनली नेम दैट एटलीस्ट मैंने अभी तक सुना है, मुझे ज्यादा नहीं पता है। बट इसमें अगर सपोज कोई आईसीआईसीआई से आज ट्रेडिंग कर रहा हो, जैसे पुराना अकाउंट था या जो भी था, they can also try and move to another account, na? Or there will be, the switching cost is too much. Switching cost as in effort, not in terms of money, but in terms of effort. आज अगर आप जीरोधा का अकाउंट खुलवाना चाहें तो आजकल तो ई-केवाईसी होता है, 3-4 दिन में खुल जाएगा। वो भी शायद ज्यादा बोल रहा हूँ। नहीं, बट मैं तो पर्सनली चेंज ही नहीं करूंगा। आई एम बेटर ऑफ मूविंग आउट ऑफ एसएमई। मुझे मैं आई एम लाइक
सी अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि 3-4 दिन में आईसीसीआई वाले खुद ही हो जाएंगे, वरना आई गो बाय माय चैनल्स, आई इम्प्रेस अपॉन देम. मतलब आई एम श्योर कि आई एम बिलीविंग ऑन पब्लिक्स विजडम एंड आईसीसीआई विजडम. देयर इज नो वे दिस विल सस्टेन, but I'm not comfortable going to these discount brokers frankly for variety of other reasons, but purely because मैंने बैंकिंग साइड में हूँ ना, मेरा पर्सनल में एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. मुझे पता है कि ऑपरेशंस कैसे चलते हैं. हम ये मान के चलते हैं ना कि वहां बेचेंगे, यहाँ हमारे अकाउंट में पैसा आएगा. पूरी की पूरी हजार लोगों की टीम है जो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड डोंट नो ट्रेड्स एंड डोंट नो कैश. ओके, सिस्टम्स फेल, सिस्टम ग्लिचेस होते हैं. तो आप एक बड़े ब्रोकर्स में जा रहे हो तो आप ये मान के चल रहे हो उधर बेचेंगे तो इधर पैसा आ जाएगा. इसी से मेरा सीमलेस मनी दिखता है मुझे. जीरोधा में इधर डाला उधर डाला, पहले तो इतना ट्रेड करो फिर उसको ट्रैक करो. मतलब वी कांट लिव फॉर मनी. दैट्स मी थिंकिंग, बट आई एम श्योर देयर आर लाइक 15% पीपल ऑन जीरोधा एंड एवरीवन इज फैन ऑफ ग्रो एंड ऑल. They have their valid reasons. So I don't think anybody would like to jump into brokers so quickly. Additional जरूर कुछ लोग खोल करके ट्रेड करना चालू कर सकते हैं, वो सब करेंगे. I don't even trade, so मैं उसका I'm not a best person to actually answer this also. I should have not attempted, frankly. Just one additional data point on that is that as per my understanding, HDFC today offers both. One is HDFC Security, जो पुराने वाला उनका चला आ रहा है, जैसे ICICI डायरेक्ट का सिस्टम था, जो लोग उसमें हैं उसमें. अब जो वो एक उन्होंने कुछ HDFC Sky करके भी निकाला है, which is more on the discount broker model as well. तो पर it's part of HDFC. To your point, शायद that might be a lot more seamless. But yeah, I was asking. No, but I don't think HDFC can say our compliance has taken a call that X platform will allow it, but Y will not. हाँ, तो आप वो सोचिए ना, मतलब that's technically looks very odd. yes, that I agree कि वो नहीं करेंगे वो. अभी तक thankfully HDFC ने वैसे सेम चीज इम्प्लीमेंट भी नहीं करी है उनके उस पे. तो I think that's how it should be. Anyway, I think we have one more speaker, Vineet. Maybe he has some say. Otherwise, हम लोग आपस में echo chambers में will. And Ameya is also here, so I'll go on mute mode. Yeah. Rajesh ji got dropped, or Sandeep? He was there as a speaker. Anyways, yeah. Meanwhile, I'll check Vineet and Ameya, your thoughts on the ongoing conversation. Hi, Prince. Am I audible? Yeah, go ahead. So, hi Sandeep, hi Nikhil, hi Amey, everyone, hi everyone. So, Sandeep, if I remember correctly, this SME segment was actually introduced in 2012-13, and after its launch, for next 7-8 years, it just for barring 1.5 year, nobody even looked at SMEs. So post-COVID, when a lot of money was flushed into market, all the mid and small caps attracted a lot of retail money, and eventually it has become a playground for everyone nowadays. So it is a given that market regulator, जहां पर ज्यादा वॉल्यूम आने लगेगा वहां पर मार्केट रेगुलेटर ज्यादा एक्टिव होगा. And eventually market regulator will also force its members like brokers to put some restrictions wherever required. तो ये तो गिवन ही है. अब जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में भी अब शायद नया रेगुलेशन आ जाएगा that some stocks which do not have enough volumes in the FNO space, they will also be moved out, and some stocks which have enough volume, they will be inducted into the futures and options. So ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है इन इंडिया. जहां जहां पर पब्लिक बढ़ती जाती है वहां वहां गवर्नमेंट रेगुलेशन लाती चली जाती है. आज से 20 साल पहले जब शुरू में टेलीफोन्स और मोबाइल फोन्स आए थे, हमारी फोन की कॉस्टिंग 8 रुपए की कॉल, 20-15 रुपए की कॉल होती थी. बट जैसे जैसे मास अडॉप्शन होता गया, रेगुलेशंस आती चली गई, और उसके बाद फिर सडनली इतना कंपटीशन हो गया दैट द गवर्नमेंट हैड टू इंटरवीन इन बिटवीन. सो जहां जहां पर भी a lot of जनता will come into the play, I think government and the regulator will always step in. ये given है. अगर हम ये मान के चले कि फ्री में छोड़ दिया जाए और सब कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, तो फिर वो इंडिया में नहीं चलता, क्योंकि इंडिया में जुगाड़ू लोग भी बहुत है, और उस जुगाड़ से वो फिर सारी चीजें सरपास भी कर लेते हैं, और इवेंचुअली
जिस बंदे के पास जुगाड़ नहीं है वो फिर खड़ा खड़ा रह जाता है। तो आई फील के ये जस्टिफाइड है। आई मीन दिस शुड बी डन। एएसएम और जीएसएम तो होना ही चाहिए। बाकी किसी ब्रोकर ने अगर रिस्ट्रिक्शन कर दिया है तो, और विदाउट एनी एक्सचेंज रेगुलेशंस और विदाउट एनी सेबी forcing them to stop it, then it's probably a broker's mechanism. Probably the broker has himself breached some limit on the exchange level where most of the SME exposure is at the broker level. तो हर ब्रोकर का भी एक लिमिट होता है ना इन एन एक्सचेंज के, आप कितनी मार्केट वाइड कितनी पोजीशंस आप खड़ी कर सकते हो। तो नहीं विनीत भाई, मैं थोड़ा सा बस बीच में वो करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर राइट, 2012 में स्टार्ट हुआ था एम करके, एआईएम करके फॉर्मेट था लंदन का, जो इनफैक्ट फेल हो चुका है स्मॉल कंपनीज के लिए। सिमिलर प्लेटफॉर्म था, क्वाजी लिस्टिंग काइंड ऑफ था कि वीकली एक बेसिक सी प्रोसेस होगी, बेसिक सी लिस्टिंग होगी और शेयर एक्सचेंज हो पाएंगे, रेगुलर ट्रेडिंग नहीं थी। बट इट नेवर क्लिक द वे इंडियन मार्केट्स क्लिक अंटिल 2018। यू आर राइट, मोस्टली डब्बा कंपनी थी, सबको आपको पता है, ठीक है। 2021-22 के बाद डिफरेंट स्टाइल की कंपनीज आई हैं और डिफरेंट स्टाइल के इन्वेस्टर्स भी आए हैं। तो बेसिकली जो अर्ली ग्रोथ इन्वेस्टिंग है उसका थोड़ा सा डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है लिस्टेड प्लेटफॉर्म से। जस्ट बिकॉज ये पहले कभी नहीं हिस्ट्री में हुआ है डज नॉट मीन कि इट हैज टू बाई डेफिनेशन समथिंग विच विल मीन रिवर्ट एंड हैज टू बी करेक्टेड, हैज टू बी स्टॉप्ड, राइट। जब इंटरनेट भी आया होगा तब भी ऐसे लगा होगा ना, ऐसे तो नहीं होता है, जो फिजिकल ब्रोकर रहा होगा ऐसे कैसे हो सकता है कि ऑनलाइन होगा। तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा सिनिकल नहीं रहता हूँ एंड आई फुली एग्री विथ यू। एसमी में हम लोग दोनों तरफ से पिसते हैं। एक पूरा मेन बोर्ड बैठा है जो इस सेगमेंट को आउटराइटली स्कैम मानता है, और एक रियल स्कैमस्टर हैं जो इस सेगमेंट को जिंदा नहीं रहने चाहते। तो हम बीच में दोनों साइड से लड़ रहे होते हैं। आई एग्री, हमेशा बहुत मैनिपुलेशन है। मेरा बेसिक प्रॉब्लम इससे ये है कि आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या कहना चाहता है कि ये सिस्टम में ये कंपनी है, आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो कि कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन नहीं है, ठीक है। एंड आपके पास मतलब जो इनफैक्ट अगर कोई 5% कर भी रहा होगा तो उसको भी आप इंडियन के सेटअप में प्रूव करने में आपको 5 साल 10 साल लग जाएंगे। 95 का तो आपको कोई इंट्यूशन भी नहीं होगा कि बंदा कुछ गलत कर रहा है। तो आपने 95% इन्वेस्टर्स को, 95% कंपनीज को एब्रप्टली एक फ्रेमवर्क से उठा दिया। तो हम होता है ना कि टू टू एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन, बट ये एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन नहीं है, हमने सीधे बंद कर दिया कि अब आप आज से बाई नहीं कर सकते। संदीप, लेट मी तो फिर आप डिलीट करा दो, वो जाएगा allow अपना। me to explain few things. I have worked in an हाँ exchange myself. So exchange ओके, क्या करता है, वो एक पैटर्न देखता है in the scripts where lot of speculation has been done. तो जहां जहां वो पैटर्न नजर आता है ना एक्सचेंज को, वो वहां वहां पे एक रेगुलेशन बनाना शुरू कर देता है कि अब ये पैटर्न है, ऐसे पैटर्न में ज्यादातर ऑपरेटर्स होते हैं या स्कैम्स होते हैं। उस पैटर्न के ऊपर एक रेगुलेशन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल एएसएम इज सच पैटर्न बेस्ड रेगुलेशन। तो अब उन्होंने उस पैटर्न के ऊपर एक रेगुलेशन ले आए एंड इवेंचुअली जहां जहां वो पैटर्न नजर आ रहा है, वेदर इट इज एक्चुअली में स्कैम और नॉट, it is just a pattern which they are looking at, and that's a mathematical pattern. And once that pattern is there, they invoke that ASM 1 2 3 4 whatever, and then once that pattern gets normalized and everything gets settled, that pattern is framework is revoked. सो ये सिर्फ एक पैटर्न क्रिएशन को देखा जाता है, रादर देन सेइंग के कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है या कुछ हो रहा है। उन्होंने जो पहले पास्ट में मैनिपुलेशन हुए हैं उसके बेस पे वो पैटर्न देख के वो पैटर्न एएसएम या वो जीएसएम बनाया होता है। तो उसके लिए अगर हम ये बोल दें कि यार ये तो तुम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो हमें ट्रेड करने के लिए, तो आई वुड बी ऑन द साइड ऑफ एन एक्सचेंज। दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली प्रोटेक्ट, बट इस तरीके से हर जगह होगा ये भी मैं मानता हूं कि वो गलत है, कि हर जगह पे नहीं होगा। वो सिर्फ एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एंड प्रोबेबली दैट पैटर्न नीड्स टू इवॉल्व बाय द टाइम। एक बार आपने पैटर्न सेट कर दिया, 4 साल पहले 5 साल पहले पैटर्न सेट कर दिया, आज मार्केट में पार्टिसिपेंट्स ही 10 गुना 20 गुना हो गए, तो वो पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड what ASM So, Vineet bhai, I worked with market structural participants quite a bit. मतलब मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बैकग्राउंड है एंड आई एम वेरी कीन ऑब्जर्वर स्लैश पार्टिसिपेंट। तो मैंने कई बार इन लोगों को फीडबैक दिया है कि
आप बेसिक लेवल की कुछ, जैसे इन्होंने लगाया है पीई फ्रेमवर्क लगाया है, बट पीई ट्रेलिंग पे है, अगर ये कुछ नहीं करें, आप एज ए एक्सचेंज सोचिए, इतना इम्पॉसिबल नहीं है ना, आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का कर रहे हैं, 20 और बंदे हायर कर लीजिए आप, जो एक बेसिक सेल्स, और ये आप उन चीजों पे जाइए ना कि क्या ये वैल्यूएशन इतने फ्रॉथी हैं एसएमई के कंपेयर टू एनी अदर सेगमेंट, उस तरह की कुछ एनालिटिक्स भी लगाइए ना। प्राइस मूवमेंट क्यों, क्योंकि कंपनी इतनी छोटी है तो वो प्राइस मूवमेंट उतने होंगे ही होंगे ना। 200 करोड़ की कंपनी कैन नॉट ट्रेड अर्डरली, No. दैट्स द होल So पॉइंट। Sandeep, again, हम एक्सचेंज को वैल्यूएशन या किसी ऐसे पैरामीटर जो कि फॉरवर्ड लुकिंग पैरामीटर्स होते हैं, एक्सचेंज कैनॉट लुक एट देम बिकॉज एनीथिंग विच इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी लुक्ड एट। एक्सचेंज के हाथ में क्या है? प्राइस और वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट, वट एवर। तो उनको अगर वीसी कभी लिस्ट करा दिया जाएगा तो पकड़ ही नहीं ना पाएंगे। ना तो ना आप इस सेगमेंट को बंद कर दीजिए, आप बोलिए कि जब तक 5,000 करोड़ की कंपनी नहीं होगी तब तक वो मेच्योरिटी बिजनेस नहीं आएगी, तब तक हम ट्रेड नहीं करने इट्स देंगे। नॉट। दैट्स ए फेयर नहीं थिंग। नहीं नहीं सर संदीप, फिर वही बात आ रही है कि you are talking from a perspective of a investor. You also have to think from the perspective of an exchange. कि exchange क्या करेगा? Since अगर एक exchange की जगह पे आप बैठ के सोचोगे ना, उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 2 ही डेटा आते हैं, एक प्राइस का और एक वॉल्यूम का, और कौन किस पैन से काम कर रहा है, ठीक है। और उस हिसाब से पूरा AIML लगा के, पूरा डेटा साइंटिस्ट लगा के, सब कुछ करके भी अगर कर लेंगे ना, अल्टीमेटली ये 3 या 4 पैरामीटर ही हैं जिनसे वो खेल सकते हैं। अगर उसके बियॉन्ड आप उन्हें जाने को बोलोगे, दैट मीन्स दे आर गोइंग अबव एंड बियॉन्ड देयर स्कोप ऑफ वर्क विच नहीं, बट they're not even going, they are saying this is not against company, they're just saying we are watching, right? उस वॉचिंग के बेसिस पे एक ब्रोकर ने उठा के, कंप्लायंस का मतलब एक बड़े ब्रोकर ने उठा के, आप 90% एसएमई, आप बेसिकली ये कह रहे हो, सी इंटेंट आपका कुछ भी हो, कंस्ट्रेंट आपके कुछ भी हो, राइट? आपका आउटकम ये है कि आप कह रहे हो कि देखिए, मैं एक और विनीत आपको बता देता हूँ, एंड देन विल लेट अमिया एंड अदर गाइज स्पीक, अदरवाइज आई हैव दिस हैबिट ऑफ हाईजैकिंग स्पेसेस। आप ऐसे सोचिए कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, केवल टाटा बिल्डर्स, अदानी लिस्ट हो सकते हैं। उन्हीं के पास ये पावर है कि अगले 50 साल की अर्निंग के बेसिस पे आज पैसा उठा ले। What is equity? Equity is nothing but monetization of future efforts, right? जिसके बेसिस पे आप और ग्रोथ कर सकते हैं। तो टाटा के क्लासिकल वेंडर्स होंगे लेवल 1 पे, लेवल 2 पे, लेवल 3 पे, लेवल 4 पे, जो कि उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनको मंथली सैलरी मिलेगी। दे आर नथिंग बट, दे आर कॉल्ड बिजनेसेस बिकॉज दे आर टेकिंग रिस्क, बट दे आर स्टिल गेटिंग ईयरली सैलरी विच इज नथिंग बट प्रॉफिट, उसके बेसिस पे डिविडेंड। बट द बिग बॉयज कैन अफोर्ड टू गेट ऑल द मनी फॉर नेक्स्ट 50 years। ये जो एसएमई का प्लेटफॉर्म है, वो बेसिकली यही करने की कोशिश कर रहा है। और आप इसको बहुत, अगर ध्यान से, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, आप जाके देखिए कि जितनी एसएमई लिस्ट हुई हैं, उनके सबके क्लाइंट अदानी हैं, वो हैं। तो आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे, जब हायरार्की देखोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि जो टाटा का वेंडर है वो एसएमई में आ जा रहा है। तो आपको वो कर, आपके लिमिटेशंस हो सकती हैं एक्सचेंज की, मैं वो बिल्कुल फुली एग्री, गुड पॉइंट ऑन दैट, राइट? डजंट मीन इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर कहेगा कि हम 90% एसएमई को हम ट्रेड ही नहीं करने देंगे। तो ये तो संदीप ब्रोकर, जो ब्रोकर बोल रहा है ना, जो भी ब्रोकर, आई डोंट वांट टू नेम द मैं एक्सचेंज की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल either सिचुएशन, आई एम नॉट फोकसिंग either ऑन that व्हाट एनएससी डिड, either राइट? that broker हाँ, has gotten into a hot soup with some or the other regulator because some of its parties are doing some fishy business, and that's why it is trying to stop it. Number one, I have personally myself seen small companies having low float getting rigged in front of me, in front of my eyes, on computer in front of me. I have seen it. So that cannot be ruled out कि स्मॉल कंपनीज में रिगिंग नहीं होती है। बट पॉइंट इज, अगर किसी ब्रोकर ने ऐसा किया है तो उसका कुछ वैलिड रीजन होगा। ऐसा नहीं है कि एब्रप्टली कर दिया है। हो सकता है कि उसको इंटरनली सेबी से कुछ नोटिफिकेशन आ गया हो, या एक्सचेंज से कुछ नोटिफिकेशन आ गया हो जो वो लोगों को नहीं बता रहा है, एंड इट कैन नॉट इवन से इट आउट फ्रंट कि भाई उसके किसी क्लाइंट ने रिगिंग कर दी है या कुछ कर दिया है। हो सकता है उसके 10-12 क्लाइंट ऐसे हों जिन्होंने रिगिंग कर दी हो, और वो ब्रोकर के पास ये नोटिफिकेशन आ गया हो। इन क्लाइंट के पास तो जाती है, ब्रोकर के पास भी जाती है। सो ब्रोकर के पास नोटिफिकेशन आ गई हो, भाई ये तुम क्या करवा रहे हो, एंड इवेंचुअली द ब्रोकर हैज टू अल्टीमेटली स्टॉप डूइंग दिस। तो कुछ भी हो सकता है ना। वी कैन नॉट डू ए कंजेक्चर कि भाई ब्रोकर ने गलत कर दिया या कुछ गलत किया।
हो सकता है उसके पास ऊपर से डंडा आया हो, कुछ भी होने को हो सकता है। फेयर इनफ। अभी तक मैंने समय नहीं लगाया था, आई वाज बिजी आल्सो, और मुझे पर्सनली फर्क भी नहीं पड़ रहा था। आई एम मोर बिजी इन अनलिस्टेड स्पेस एंड प्रेफ एंड ऑल, बट आई ट्राई टू फिगर आउट, आई at least to the limited set of people here, I'll try to figure out the real story. ऐसी सही में it's not that tough to figure out. सब जगह मतलब I'm sure like we all have enough I contacts in think every Sandeep, city. even with this discount brokers, तो उनका भी यही challenge है. They are also like restricting people from that. तो मुझे नहीं लगता कि it is one with one broker. It is with multiple of them. तो तो क्या अगर है? तो मल्टीपल, हो सकता है कि रेगुलेटरी लेवल पे नजिंग हो हाँ भी, अगर कंपनीज बिना मल्टीपल ब्रोकर रेगुलेशंस पे के आ भी रहा है होते ना, हैं, तो ये रेगुलेटरी लेवल तो मैचिंग वो ही है। दिस इज नॉट हाँ समथिंग। नजिंग होगी, क्योंकि वो इनफॉर्मल मैसेजिंग हाँ होती है कि आप प्लीज रेस्ट्रिक्ट करिए वरना वी विल बी फोर्स्ड टू डू समथिंग। बढ़िया है। चलिए फिर रिलायंस लेते हैं, क्या दिक्कत है। Anyway, back to Ameya or anyone So others. Ameya got dropped. Not sure he got busy or maybe due to Twitter. मैंने दोबारा एक बार request भेजा तो Ameya भाई, if you're free, तो would happy to listen your thoughts. Meanwhile, Sandeep, there is anything more to cover or we can wrap up after? नहीं, आई थिंक रैप कर देते हैं, क्योंकि सर्कुलर आर्गुमेंट होंगे अनलेस निखिल भाई हैज टू से एनीथिंग और विनीत एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड। राजेंद्र, यू वांट टू कम एज ए स्पीकर? एनीवन? No, I think I don't have many more thoughts on this particular thing. तो संदीप भाई अभी के लिए wrap up कर. अच्छा Ameya, sorry, yeah, you got dropped. You there, Ameya? हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? ये hi. ये ट्विटर के ऐप का बड़ा चैलेंज है, सो आई केप्ट ऑन डिस्कनेक्टिंग, सो नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू हियर मी नाउ। We are able to. You can go on. नहीं यार, ये ऐसा कोई स्पेसिफिकली कंट्रीब्यूट करने के लिए आई डोंट हैव अ पॉइंट। आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द कन्वर्सेशन फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड इट वाज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफी एनलाइटिंग टू लिसन टू विनीत्स व्यू एंड संदीप भाईस काउंटर। मैं जस्ट एक चीज ऐड करूंगा इसमें, ये जो आईसीआईसीआई ने किया है ना, ये पहली बार नहीं किया है। ये 2000 बहुत ब्रीफली एक्टिव था एंड ये सिर्फ एसएमई में नहीं, ये सर्टन मार्केट कैप की कंपनीज को लेके आईसीआईसीआई ने 2016-2017 में भी सिमिलर फ्रेमवर्क लाया था। द रीजन आई रिमेम्बर इज बिकॉज आई वाज होल्डिंग अ स्टॉक कॉल्ड इंटेंस टेक्नोलॉजीज एंड उसमें इतना वियर्ड सर्कुलर लाया था एक्सचेंज ने कि उन्होंने क्वार्टरली मैक्सिमम ये इसी प्राइस तक जा सकता है, उन्होंने क्वार्टरली कैप लगाया था और उन्होंने ईयरली कैप लगाया था। एंड सरप्राइजिंगली, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कैसा था, बट द पॉइंट इज क्वार्टरली जो कैप था वो ईयरली कैप से ज्यादा था या वाइस वर्सा। सो द पॉइंट इज, ये तो ईयरली पे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि क्वार्टरली अगर वो पहले ही रीच करता है तो ये इतना वियर्ड इन लोगों ने क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली कैप्स भी इन लोगों ने इसके पहले लाए हैं। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं काफी लंबे टाइम तक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कस्टमर रहा हूँ और सिर्फ एसएमई में ही नहीं, माइक्रो कैप में भी ये लोग बहुत सारे कंपनीज को ट्रेड बाय सेल नहीं करने देते थे। ये जो हम लोग अभी एसएमई में वॉल्यूम आया है या फिर स्पेकुलेशन हो रहा है, रिग हो रहा है, रिग होने को मेन बोर्ड भी रिग होता है, राइट? ऐसा नहीं है कि छोटा कंपनी है तो छोटा कंपनी ही रिग हो सकता है। रिग करने वाले किसी भी स्टॉक को रिग करते हैं, मल्टीपल वे से रिग करते हैं। हम सब लोग काफी टाइम से मार्केट में, हम लोग अलग अलग मैकेनिज्म हम सब लोग जानते हैं। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि मैंने ऐसा भी टाइम देखा है जब ये जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, ये लोग कई सारे स्टॉक है, मुझे याद है एक अंबालाल साराभाई करके था, उजस एनर्जी करके था, उजस एनर्जी तो चलो वॉट एवर इट वॉज, बट ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे उस टाइम पे भी 2014-2015 में, जब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अलाउ नहीं करता था और लोग छोटे ब्रोकर के पास जाते थे। छोटा ब्रोकर आपको सब करने देता था। कुछ कुछ छोटे ब्रोकर तो ऐसे थे कि आपको कैश में भी शॉर्ट करके दूसरे दिन कैरी करना अलाउ करते थे। अब रेगुलेशन चेंज हो गया है, अभी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गए, तो वो सारी चीजें चली गई हैं ऑफ कोर्स। एंड लाइक विनीत सेड, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ये इवॉल्व हो रहा है। अदरवाइज वो जो वियर्ड क्राइटेरियाज हुआ करते थे 2016-2017 में एएसएम जीएसएम को लेके, थैंकफुली वैसे क्राइटेरियाज अभी नहीं है।
सो जस्ट वांटेड टू से कि ये ऐसा नहीं है कि ये इन लोगों ने ये पहली बार किया है. मेरा एक्सपीरियंस रहा है ICICI सिक्योरिटीज के साथ स्पेशली, ये इसके पहले भी ये लोग सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस लाते थे. अब ऐसा है ना कि अगर एक स्टॉक, सपोज कोई स्पेसिफिक स्टॉक है जो इसके पास, लाइक जैसे विनीत ने बोला कि कस्टमर वाइड सेगमेंट, उसमें पोजीशन अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं. ये प्रोबेबली फेयर एक्सप्लेनेशन है. बट मैंने ये भी देखा हुआ है कि ऐसे वियर्ड रेस्ट्रिक्शंस आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. थोड़ा सा यूफोरिया, वॉटेवर जिसको जो भी बोलना है, वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है, डाई डाउन हो जाता है, सब कुछ वापस निकल जाता है. सो रेगुलेशन कंप्लायंस साइड में वी हैव ऑल दीज पीपल हु नो मच मोर देन दैट. मैं बस जस्ट एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस दे रहा था कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ SME में है. ये इसके पहले भी काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में भी सर्टन प्राइस एक्शन के बेसिस पे एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स यूज टू कंट्रोल. आप बाय कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्वार्टरली एक बार बाय कर सकते हो, 6 महीने में एक बार बाय कर सकते हो. ये बहुत वियर्ड तरीके की चीजें ICICI सिक्योरिटीज स्पेशली इसके पहले ला चुका है. सो जस्ट वांटेड टू शेयर दैट पॉइंट, नथिंग एल्स. बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, संदीप भाई एंड विनीत. Thanks, Samaya. Vineet Jain also joined. So, Vineet, any thoughts around the topic for today? Hi Prince, hi everybody. First of all, I think बहुत जबरदस्त discussion था ये. मुझे बहुत सीखने को मिला, to be honest. And it's always a pleasure to listen to Sandeep ji in particular, but even Nikhil, Vineet, Amaya, thank you so much. मेरे सिर्फ इसमें एक दो quick points है Prince कि I mean I don't have a view at this stage on जो ICICI सिक्योरिटीज कर रहा है वो सही है गलत है. बट व्हाट कॉट माय अटेंशन वाज जब आपने बोला कि दूसरे ब्रोकर्स भी शायद इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं. और इफ दैट इज द केस देन इट कुड मीन कि सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज गॉन आउट फ्रॉम द रेगुलेटर. अभी वो सॉफ्ट मैसेजिंग हो सकती है. बट if this is true, then if some brokers don't start bringing in restrictions, it's possible कि ये दूसरे ब्रोकर्स भी और ओपनली रिस्ट्रिक्शंस लगाना अगर शुरू करेंगे. इससे होगा क्या? इससे एक्चुअली ये पूरा SME सेगमेंट में जिस प्रकार की लिक्विडिटी हमें देखने को मिली है ना अभी, ऑब्वियसली ICICI सिक्योरिटीज एंड एवरीबॉडी एल्स बीइंग वरीड अबाउट नॉन डिलीवरी ट्रांजैक्शन बेस्ड राइजेस इन स्टॉक प्राइसेस. अब ये सेगमेंट इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ना केवल ये कंपनियां छोटी है, पर क्योंकि इनके लॉट साइजेस थोड़े बड़े हैं. सो द प्योर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज वेरी स्मॉल. एंड ऑलमोस्ट एनी SME, लिस्टेड SME आप देखोगे तो उसके प्योर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यूजुअली 1000 से कम ही होते हैं. बहुत सारी SMEs के 200-300 शेयर होल्डर्स होते हैं. कुछ केसेस में शायद 1000 से 1500 शेयर होल्डर्स होंगे. अब जब इस प्रकार का पोजिशनिंग आने लगती है किसी मेजर ब्रोकर से लाइक ICICI सिक्योरिटीज, और अगर दूसरे ब्रोकर्स भी इस डायरेक्शन में सोचना शुरू करेंगे, आई फियर कि जो मार्जिनल ट्रेडर्स है जो इन कंपनीज में पोजीशन सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पसेस से बनाए हैं, वहां पर एग्जिट्स उनको दिखनी मुश्किल हो जाएंगी. एंड इफ दैट इज द केस देन देयर इज a reasonable chance that there could be some sort of temporary panic that might set in into the space. And as most things are, right, like Sandeep ji was explaining very well ki jo stock price aap dekhte ho is only the price at which the incremental buyer has bought and the incremental seller has sold, right? So while let's say if there are 800 shareholders in a company, they're holding lots of lots, पर अगर वो 800 में से 100 शेयर होल्डर्स आके बेचने की कोशिश करेंगे एंड प्योरली फ्रॉम अ फियर कि आगे जाके उनको एग्जिट नहीं मिलेगा अगर ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्ट हो गई, देन इट कुड लीड टू damaging the sentiment for the remaining 700 shareholders who intended to hold that security for a long period of time. विनीत, मुझे बस एक सेकंड दीजिएगा. मुझे एक थोड़ा फनी टेक इसमें याद आ गया. लुक एट द आर्गुमेंट ऑफ इट कि हम बाई नहीं करने देंगे, हम सेल करने देंगे. Exactly. अब सेल कौन करेगा? कोई और ब्रोकर की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. ये इनफैक्ट आपने हम जो अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन आपने जो रोरिंग, बाहर आप जाइए और कहीं और किसी और ब्रोकर से कुछ करिए. बिल्कुल. आपने जो रोरिंग किटी का एग्जांपल दिया था ना, वहां पे भी ऐसा ही हुआ था एक्चुअली. इट वाज वेरी सिमिलर. एंड
यही होता है इसमें ऐसे केसेस में कि वो शॉर्ट टर्म पैनिक क्रिएट हो जाता है विच इज नॉट गुड फॉर ब्रॉडर सेंटिमेंट. ऑब्वियसली जो लोग स्लाइटली लॉन्गर टर्म अगर इन कंपनीज में एक्चुअली कंपनीज की फंडामेंटल्स को देख के इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड अगर है, हो सकता है उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाए इन दिस प्रोसेस. But yeah, this is essentially, in my view, interfering with free markets in a space jahan number of people per security anyway restricted है. So number of decision makers बहुत कम है, ज़्यादा democratized नहीं है. Even though it's open to everybody, but pure number of people trading in SMEs is still very small in the country. तो ये जब छोटा group, cartelized group in a way, So both Vineet actually, आपने एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोला विनीत अभी आपने कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. बट अगर आप देखिएगा कि पर शेयर जो होल्डिंग है ना, दैट एज अ प्राइस इज वे हायर देन मेन बोर्ड प्योरली बिकॉज ऑफ लॉट, absolutely, राइट. तो अब 200 करोड़ की कंपनी होगी तो 20,000 शेयर होल्डर तो हो भी नहीं सकते ना. बिल्कुल बिल्कुल. ये तो स्ट्रक्चर ही वैसा है उस सेगमेंट का. इसको आप इसको नेगेटिव सेंस में कैसे लेना. बहुत बार लोग बोलते हैं कि 200 ही शेयर होल्डर है. मैंने कहा आईआरसीटीसी ले लो, 5 लाख शेयर होल्डर है, 4.5 को तो पता भी नहीं है कि आईआरसीटीसी का क्या होने वाला है. बिल्कुल. तो हमने जो ये बहुत बार क्या होता है, ये ब्यूटी होती है रेगुलेशंस की, और ये जस्ट नॉट फाइनेंशियल रेगुलेशंस और जस्ट नॉट फाइनेंशियल रेगुलेशंस इन इंडिया. एवरी रेगुलेशन, दैट्स द होल कैट एंड माउस गेम, राइट. कि आप हर रेगुलेशंस का आफ्टर इफेक्ट होता है. इनफैक्ट फाइनेंशियल मार्केट में बोला जाता है कि एवरी क्राइसिस रेजोल्यूशन बेसिकली इज सीड फॉर नेक्स्ट क्राइसिस. Absolutely. फॉलो अप रेगुलेशन ऑन द टॉप ऑफ ए क्राइसिस. अब कभी विनीत मैं आपको अलग से भी डीएम भी करूंगा. आप देखना कि जितना जीएफसी है या उसके पहले, मतलब वो 95 के रिफॉर्म से आया, 95 वाला 70 के रिफॉर्म से आया, 70 वाला, मतलब हर जो अगली क्राइसिस है वो पिछले क्राइसिस के रेजोल्यूशन से बिल्कुल आई है. बिल्कुल, बाय ऑल मींस. बिल्कुल. तो हर रेगुलेशंस का इंटेंट अच्छा होता है, बट आपको उसके आफ्टर इफेक्ट देखने हैं. फॉर एग्जांपल 100%. जो आपने लॉट साइज किया है, जी. अगर वो लॉट साइज अगर आप 50,000 20,000 कर दें, आप एक बंदे को ये कह रहे हैं कि वो पेटीएम ले सकता है, लॉस मेकिंग कंपनी, जो कि 2,000 रुपए से लेके 400 तक आई और वापस 600 तक आई, वहां पे आपको कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है. बिल्कुल. बट इस एसएमई सेगमेंट में आपको बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत है. तो मेरा पॉइंट ये है कि फिर आपको इस सेगमेंट को ओपन ही नहीं करना चाहिए था. लेट इट बी ए प्राइवेट मार्केट. अगर आप कर रहे हो तो फिर आपके जस्ट बैड एक्टर्स आर एवरीवेयर, एज अमेय हैज सेड, राइट फ्रॉम द टॉप टिल बॉटम. एंड व्हाई ओनली टॉक अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स, राइट, इन पुलिस, इन जुडिशरी, एवरीवेयर सोसाइटी में. उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा एक सेगमेंट ब्लॉक कर दोगे ना. बिल्कुल. आप पकड़िए, योर इनएबिलिटी टू कैच थीव्स डज नॉट मीन आप पूरा मार्केट बंद करा दोगे ना. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आई एग्री. एंड आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली, ये जो अगर आप रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस लगाएंगे इन अ सेगमेंट जहां एनीवे नंबर ऑफ डिसीजन मेकर्स कम है, तो उसके इफेक्ट्स भी ज्यादा एम्पलीफाई होंगे. So what we will probably see here in terms of impact will be much more amplified than it should have been. It could have been handled, I think, in a much better way. They could have, potentially. But look, I don't think I want to get into solutioning here कि वो क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे. But यहाँ पर definitely जो pure free market principles के साथ, and in a segment जहाँ number of actors anyway कम है, concentrated ज्यादा है, वहां पर आई थिंक इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा. दिस कुड एम्पलीफाई द इफेक्ट्स क्वाइट सिग्निफिकेंटली. सो आई मीन इट्स क्वाइट वरीइंग. एंड आई होप दैट ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इंडिविजुअली ऐसे एक्ट किया है, ये बाकी ब्रोकर्स भी ये करना शुरू ना कर दे, बिकॉज इट कुड डैम्पन सेंटिमेंट अक्रॉस द बोर्ड, आई थिंक, व्हिच वुड नॉट बी गुड. जस्ट एक इनफैक्ट मैं वेरीफाई कर नहीं पाया था. माई वेल्थ हैर एम वेल प्लेस्ड एक्चुअली. सो ही सेड कि आप सर मेल कर दीजिए तो केस बाय केस पे हम सिक्योरिटी ओपन कर देंगे ना. मैंने कहा मुझे नहीं ट्रेड करना है, मतलब आई डोंट हैव टाइम आल्सो, आई डोंट बाय एंड सेल दैट रेगुलरली. मैं आई वाज जस्ट क्यूरियस क्योंकि सम ऑफ माय फ्रेंड्स वर आस्किंग. तो आई डोंट थिंक कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है. आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट, इसीलिए मैं आराम से बैठा हुआ था. प्रिंस ने बोला इस टॉपिक पे कुछ पूछ रहा था, तो मैंने कहा, एंड सो मेनी पीपल वर आस्किंग, तो मैंने कहा चलो स्पेस ही कर लेते हैं, लेट्स think together kind of a thing. But my strong hunch based on some understanding is this is just a matter of time. It will get resolved because of commercial intent also. Usually ये compliance वाले isolation में कुछ logic लगा देते हैं, क्योंकि अगर वैसा है तो फिर सारे ब्रोकर बंद करेंगे, और सारे ब्रोकर बंद करना इज एज गुड एज की मार्केट बंद कर देना. आई मीन एनीबडी कैन डू एनीथिंग इन इंडिया मार्केट. लेकिन आप कोई भी चीज, इतना बड़ा एक सेगमेंट, स्पेसिफिक केस में ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन के सब जगह आर्गुमेंट्स होते हैं, पूरा एक फॉलो अप होता है, तब जाके उस कंपनी को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. इनएबिलिटी टू हैव अ बेटर सिस्टम डज नॉट मीन यू विल शट डाउन द मार्केट.
राइट? तो वो तो हो नहीं सकता ना कि इसमें जेन्युइन इन्वेस्टर, जेन्युइन कंपनीज भी हैं। आपने कोई ऐसा कदम उठा लिया है कंट्री लेवल कि आपने बोला कि अब से एसएमई बंद है, क्योंकि इफेक्टिवली अगर आईसीसीआई ने किया और लेट से 7 और ब्रोकर ने किया, तो आप क्या कह रहे हो? आप सेल कर सकते हो बट बाय नहीं कर सकते हो। इससे वियर्ड आर्गुमेंट क्या हो सकता है? बिल्कुल। मतलब बायर तो होना पड़ेगा ना, तभी तो सेल होगा ना। बट इस केस में वही दिक्कत है ना कि एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है या नहीं ये सेकेंडरी, पर अगर ये परसेप्शन बैठ गया कि प्रॉब्लम है, then that's bad enough. That does the damage. That's okay, man. That's okay It's for okay. I mean people who have taken positions for 5 days, 10 days. Sometimes I feel कि थोड़ा penalize भी होना चाहिए लोगों को. Fair enough. That's So a good way of I'll be looking at it. personally I'll have vicarious pleasure कि देखा बताया था ना कि trade मत करो. But I mean that's just to put it on a light sense. सही बात है। Personally I'm not worried. नहीं बिल्कुल। एंड इनफैक्ट इसमें थोड़ा आपदा में विपदा वाली भी बात आ जाएगी। ऑल ऑफ अस हु हैव बीन वेटिंग ऑन द साइडलाइंस फॉर सर्टेन कंपनीज दैट वी हैव लाइक्ड अ लॉट बट वर आउट ऑफ आवर रेंज, हो सकता है ये रेंज में भी आ जाए। सो आई थिंक गुड वे टू लुक एट थिंग्स पॉजिटिवली। होपफुली ज्यादा डैमेज प्रोलॉन्ग नाउ, एंड लाइक यू सेड होपफुली दिस इज शॉर्ट टर्म एंड थिंग्स गो बैक टू नॉर्मल प्रीटी क्विकली। कंप्लायंस वालों का जो ओवररीच है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए। संदीप, one request. इसमें एक चीज मुझे लगती है, इसमें ये जो सारा डिबेट हो रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए भी हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आई थिंक अगर ये ठीक से कम्युनिकेट कर दिया जाता, ये कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, तो probably it will be much more reassuring and maybe people will understand the reasoning. A lot of the reasons that all of us are sharing here, अगर वो ICICI से या रेगुलेटर से कहीं से आ जाती, तो मुझे लग रहा है पूरी जो प्रॉब्लम ही हो रही है कि कम्युनिकेशन ठीक से हुआ ही नहीं है या कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है, तो probably that is leading to all of this confusion all around and causing this. Sandeep, one request here. Am I audible? Sandeep? Yes. हाँ संदीप, आई वांटेड टू नो यार, कोई फॉर्मल कोई ईमेल या कुछ जो कम्युनिकेशन आईसीआई से आई है, कैन आई गेट इट इन माय डीएम? इज इट पॉसिबल? नहीं, मुझे तो आई नहीं है, और आई भी होगी तो मैं जीमेल भी नहीं चेक करता, मैं कुछ भी नहीं चेक करता। मतलब मैं पूछ लूंगा बट मोस्ट लाइकली नहीं आया है। मैंने अपने ब्रोकर को कॉल किया, तो जो मेरा कस्टमर केयर पे बात हुआ, तो मैंने उसको बोला मैं यार तुमने कोई ईमेल कम्युनिकेशन नहीं करी, तो बोला ही वाज मोर और लेस ब्लैंक। तो मुझे लग रहा है कि जैसा आप बोल रहे थे अभी पीछे कम्युनिकेशन में, मैक्सिमम उनको भी पूरा आइडिया नहीं कि क्या चल रहा है, और वही सबका सेम जवाब था कि भाई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। तो फिर वो आरएमएस के पीछे आरएमएस से ब्लॉक कर रखा है ना, मतलब। और आरएमएस का ब्लॉक तो यूजुअली फिर वो रेगुलेटर की तरफ से या फिर कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी कह नहीं सकते। चलो देखते हैं, फिगर आउट हो जाएगा। सुमित, कम्युनिकेशन मिले तो भेजना यार, आई वांट टू रीड द टेक्स्ट एक्चुअली। ठीक है, डन है। मैं एक्चुअली आई कैंट फिगर आउट क्योंकि ये ट्विटर हैंग हो गया है। हु इज द स्पीकर, कैन एटलीस्ट आई नो द नेम? सुमित। अच्छा सुमित, ठीक है। मुझे समाउ वो स्पीकर नहीं दिख रहा है, इट्स ओके। सुमित, आई ट्राई, इफ आई फाइंड समथिंग आई विल लेट यू नो। दैट इज वन। बट मैं निखिल का एक ऐसे प्रिंस जस्ट टू लाइटन अप, अदरवाइज ऐसे लग रहा है रात को 10:30 बजे बहुत सारे लोग परेशान है। ऐसा नहीं है, टाइम पास ही कर रहे हैं। तो निखिल, आपका क्वेश्चन 99% मेरे एक एक्स मेंटर स्लैश मैनेजर, जो भी कह लीजिए, द पर्सन आई यूज्ड टू रियली रिस्पेक्ट, वो बोलता था कि 99% ऑफ वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? तो बोले कि डेथ से ज्यादा कुछ सर्टेन नहीं है, फिर भी डेथ में लोग इतना दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है कि कब मरने वाले हैं। अगर पहले से बता दें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं तो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना। 2 महीने पहले से भी तो बता सकते थे कि 2 महीने बाद हम बंद करने वाले हैं, लेकिन सब कुछ हमें बाद में ही बताया जाएगा। तो एक्चुअली and just to continue on the lighter note without saying anything, 2016 के बाद से आई थिंक ये हमारे को आदत पड़ गई है अचानक 8 बजे या सुबह का 8 हो या रात को 8 बजे हो, कुछ ऐसी बातें करने का जो सडनली बताई जाती है। तो वही है। चलिए जी। So quickly, Sumit, you can ask your question or your short input. Yeah. I have a question. First of all, Prince Bhai, thank you for hosting it. It's really making the investing interesting. More than making money, it's getting interesting for me. तो मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब ये इसी बात से ट्रिगर हुआ कि ये आईसीआईसी वालों ने कैसे बाइंग रोक दिया। मतलब मेरा क्वेश्चन काफी नेव हो सकता है, लेकिन मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे ये ब्रोकरेज वाले कैसे रोक देते हैं। क्या मतलब कुछ ओपन एपीआईज अवेलेबल हैं मार्केट में कि वो उन एपीआई के थ्रू बाइंग रोक दे रहे हैं? और व्हाट आई एम कमिंग फ्रॉम, बेसिकली फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग इज,
इफ कोई ऐसी एपीआईज अवेलेबल हैं, जैसे जीरोदा की एपीआईज हैं या फिर ग्रो की एपीआई है या फिर अपस्टॉक्स की या किसी की भी ऐसी ओपन एपीआई हैं, तो फिर अगर वो रोक पा रहे उन एपीआई के थ्रू बाइंग या सेलिंग, तो फिर तो एज ए रिटेलर, अगर मैं थोड़ा अगर मतलब बेसिकली आई कम फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर ऐसी एपीआई अवेलेबल है तो फिर तो हम जो एसएमई के जो ऑर्डर होते हैं मॉर्निंग में 9 बजे मैं ऑर्डर लगाता हूँ और मैं 10 दिन से लाइन में खड़ा रहता हूँ और मतलब मुझे आई डोंट गेट ए अलॉटमेंट। तो अगर ऐसी एपीआई है तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप वो अपना ऑर्डर मतलब किसी स्क्रिप्ट के थ्रू ट्रिगर करा सकते हो, अगर वो एपीआई ओपनली अवेलेबल है? मुझे पता नहीं है कि यहाँ कौन इसका आंसर देगा, लेकिन चूंकि अमेय भाई थे, वो थोड़ा आईटी में है, तो शायद मैं सोचा कि पूछ लेता हूँ। अगर वो अमेय भाई नहीं है तो कोई और अगर थोड़ा जानकारी है तो बताइए, मतलब या So Sumit, let me attempt it, even though I'm not technical. First of all, अब दूसरे टॉपिक पे चले गए. Even though you tried to connect it, I can understand कि आपका क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है. So that's a $1 million question, of which the solution is $10 million. शॉर्ट में ठीक है. तो आपको ये लग रहा है कि मानसी और इनको शेयर्स मिल रहे हैं, तो मुझको कैसे 9 o'clock पे मिल जाए यूसीएलसी पे. लीज लाइंस होती हैं. आज इनफैक्ट एक ग्रुप में डिस्कस हुआ और एक काफी सीजनड इन्वेस्टर ने कुछ ही अपेरेंटली हैड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर सेटअप. तो नेचुरली एल्गो ट्रेडिंग हो रही है, वो तो बेसिक है, चलिए वो भी आप कर लोगे. एपीआई आप नेदरलैंड से बैठ के नहीं चला पाओगे, उसके लिए आपको बोरीवली और कांदीवली मूव करना पड़ेगा एक्सचेंज के पास में. आप एक काम करिए सुमित भाई, आप एक माइकल लेविस की बहुत ही फेमस बुक है इस पे एचएफटी पे ही, उसको पढ़िए तो देखिए कि कितना एफर्ट डलता है. इनफैक्ट आप जो सुचेता दलाल की एनएससी स्कैम पे बुक है, उसका भी क्रक्स यही है ना कि सॉल्ट डिस्टेंस कितने क्लोजर टू द सर्वर है और उस एक्सेस के. तो ये रिटेल का तो गेम ही नहीं है, उस डायरेक्शन में सोचना. तो मुझे लगता है कि नेदरलैंड्स में बैठ के आप एटलीस्ट पहले बॉम्बे मूव करिए, फिर बात करिए कि लीज लाइन लेंगे ये लेंगे. बट दैट्स ऑन द लाइट साइड. सीरियस साइड में ये भी है कि जो अपेरेंटली जो आप नाम आपको बार बार देख रहे हैं, आई विल नॉट टेक नेम्स, दे पुट मे बी 1 crore 2 crore के 50 ऑर्डर्स क्यू में एल्गो से डालते हैं फास्ट, और लीज लाइन है उनके पास. तो आपको 400-500 करोड़ का मार्जिन चाहिए. दैट इज द टेक्स्ट आई एम वर्बेटिम कोटिंग विदाउट टॉकिंग अबाउट दैट इन्वेस्टर, जस्ट टू इंश्योर हिज प्राइवेसी. उस तरह के मार्जिन में जाके वो जो आप बल्क डील उठाने की कोशिश कर रहे हो ना कि क्यों में मैं आगे आ जाऊं, तो फिर जाके कुछ होगा. तो बेटर है कि कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए. लाइफ में हर चीज नहीं मिल सकती है, तो ये टॉपिक अपने आप लोगों में ही डाल दीजिए. ठीक है संदीप भाई। हाँ, मतलब मेरा पॉइंट यही था कि मतलब उस दिशा में सोचना भी चाहिए या फिर वो उसको जाने दें। नहीं नहीं नहीं, अरे आप ही भर थोड़ी ना आईटी में हो, बहुत लोग हैं यहाँ पे, पूरा इंडिया बैठा हुआ है. हाँ, तो करेक्ट करेक्ट, सब यही करेंगे. समझा मैं, समझा. ओके, क्लियर संदीप भाई. सुमित, 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा. मार्केट में 3 तरीके के पार्टिसिपेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ द स्पीड एटसेट्रा विच यूर टॉकिंग. को लोकेशन वाले जो बंदे हैं उनकी ऑर्डर प्रायोरिटी हमेशा सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज दे हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टू द मार्केट. उनके पास जो प्राइस रिफ्लेक्शन भी आता है सबसे पहले आता है. तो जो एनएससी के सर्वर के साथ को लोकेशन सर्वर पे बैठे हैं एनएससी की बिल्डिंग में या आसपास की बिल्डिंग में, दे विल गेट द मैक्सिमम स्पीड. देन लीज लाइन एंड वीसैट वाले आते हैं. उसके बाद आते हैं जो ब्रोकर के थ्रू अपना ऑर्डर भेज रहे हैं, विच इज यू एंड मी, थर्ड प्रायोरिटी. और जो ब्रोकर आप कह रहे हो ना कि कैसे बंद कर दे रहा है बाइंग सेलिंग, वो एक्चुअली में आपका जो ऑर्डर जाता है वो ब्रोकर के आरएमएस के सिस्टम के थ्रू जाता है. एंड आरएमएस कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स टू योर ऑर्डर. तो वो पहला जो फिल्टर लगता है वो ब्रोकर के आरएमएस पे ही लगता है. वो पहले चेक होता है कि आपके पास मार्जिन है भी या नहीं है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद कहीं आप M2M पे तो नहीं खड़े, 20 तरीके की चीजें होती हैं आरएमएस में. एंड देन इट गोज टू द एक्सचेंज, एंड देन अगेन इट्स द थर्ड प्रायोरिटी आफ्टर ऑल द अबव टू. Thanks, Vineet and Sandeep. I think we are time to close for today. Anything on closing remarks, and then we close for today. No, thank you. I mean, I have nothing to close. Sumit, I was talking about the book named Flash Boys. You'll surely like to read it. Yeah.